بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ایگریکلچر بلز کے خلاف بھارت بند، کئی جگہ روڈ ریل ٹریفک ٹھپ۔ اکالیوں نے کہا پنجاب میں بلز لاگو نہ کیے جائیں۔ نتن یاہو نے مغربی کنارے میں یہودیوں کے لیے 5000 مکانات کی تعمیر کا دیا حکم۔ الجیریا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن میں یو اے ای کے سفیر نے کہا اماراتی مڈل ایسٹ میں امریکہ کے رول پر چیئر لیڈرز ہیں۔ پیرس میں چارلی ہیبڈو آفس کے قریب چاقو سے حملہ، 4 زخمی، 1 گرفتار۔ لندن میں پولیس آفیسر کو ہلاک کر دیا گیا، حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی۔ کم جونگ ان نے ساؤتھ کوریا کے شہری کی ہلاکت پر معافی مانگی۔ دنیا وبا کے امتحان میں ناکام، سیکیورٹی کونسل سے اینٹونیو گوٹریز کا خطاب، یورپ کے کووڈ کیسوں میں بے تحاشا اضافہ۔ مشہور سنگر ایس پی بالا سبرمنیم کی کووڈ سے موت، انڈیا میں 86,000 سے زیادہ نئے کیس۔ بہار اسمبلی الیکشنز کا شیڈیول جاری، 28 اکتوبر سے 3 مرحلوں میں پولنگ، 10 نومبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی۔ ہیڈ لائن سے آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ میگزین چارلی ہیبڈو کے پرانے دفتر کے قریب چاقو سے ایک حملے میں کم سے کم 4 لوگ زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے بعد 2 حملہ آور فرار ہونے کی خبر ہے۔ نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے یہ بات بتائی۔ نیوز ایجنسی کے نمائندے نے بتایا کہ اس واقعے کے مقام پر بڑی تعداد میں پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ یہ دفتر پیرس میں ایک سب وے اسٹیشن کے قریب ہے۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ وہ سرگرمی سے حملہ آوروں کو ڈھونڈ رہی ہے اور علاقے کو گھیر لیا گیا ہے۔ قریب ہی ایک لاوارث پیکیج بھی ملا جس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس حملے کے مقام سے کلہاڑی یا ستور جیسے ہتھیار کو برآمد کیا گیا۔ شک کی بنیاد پر ایک شخص کو حراست میں لینے کی بھی خبر ہے۔ حملہ آور کتنے تھے اس بارے میں الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ بعض خبروں میں 1 اور بعض خبروں میں 2 حملہ آوروں کی اطلاع ہے۔ 2 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب 2015 حملے کے سلسلے میں مقدمہ چل رہا ہے۔ Ouais, peut-être, ouais. Parce que là, j'aurais- کچھ دن پہلے ہی چارلی ہیبڈو میگزین نے گستاخانہ کارٹونز کو دوبارہ چھاپا تھا۔ چارلی ہیبڈو کے دفتر پر 2015 کے حملے میں 12 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تازہ حملے کا مقصد معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ بھی فی الحال معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا اس کا تعلق پچھلے دنوں چارلی ہیبڈو میگزین کی طرف سے گستاخانہ کارٹونز دوبارہ چھاپنے سے ہے۔ پولیس نے حملہ آوروں کی پہچان نہیں کی۔ اس واقعے کے بعد فرانس کے وزیر اعظم نے اپنی مصروفیات ختم کر دیں اور عہدیداروں کے ساتھ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना में हालिया बरसों में तकरीबन 16,000 मस्जिदें शहीद की गईं। इंसानी हकूक कारकुनों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। बताया गया कि सबसे ज्यादा मस्जिदें उर्मुकी और काशगर इलाकों में तोड़ी गईं। चाइना के ओहदेदारों का कहना है कि वो जिनजियांग सूबे में मकामी लोगों को मुकम्मल आज़ादी देते हैं, लेकिन वक्फे वक्फे से ऐसी खबरें आती हैं जिनसे सरकारी ओहदेदारों के दावों की नफी होती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में यहूदियों के लिए 5,000 मकानात की तामीर का हुक्म दिया है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब यूएई और बहरीन ने हाल ही में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं और ऐसे इशारे मिले हैं कि दूसरे अरब मुल्क भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। फ़लस्तीन की मान न्यूज़ एजेंसी ने इसराइली मीडिया के हवाले से बताया कि लूकिट पार्टी के 70 साल चेयरमैन नेतन्याहू ने 5,000 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 6 महीने पहले ऐसी तामीरात पर रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि यहूदी आबादकारों ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से हाल ही में एक मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यहूदी इंतहा पसंदों ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि मगरबी किनारे में तामीराती सरगर्मियों पर रोक खत्म कर दी जाए, वरना उन्हें एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में घुस कर रात के वक्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह खबर दी। अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया है। अल्जीरिया के एक वजीर और हुकूमत के तर्जुमान ने लंदन के अलमयादीन टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुल्क फ़लस्तीन कॉज को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। अमेरिका में यूएई के सफीर ने अपने मुल्क के ओहदेदारों को मिडल ईस्ट में अमेरिका के रोल पर चेयर लीडर्स करार दिया है। यूएई के सफीर यूसुफ अल उतैबा ने 4 हफ्ते से भी कम वक्त में इसराइल यूएई समझौता कराने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने इसराइल के एक अखबार में आर्टिकल लिखते हुए ये बात कही। इजिप्ट में जुमे को हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुल्क में बिगड़ते हुए मौशी हालात और दूसरी वजूहात की बिना पर लोगों ने गजब का दिन मनाया। जिलावतन रहने वाले एक साबिक फौजी कमांडर मोहम्मद अली ने अवाम से मुजाहरों की अपील की थी और तब्दीली का मुतालबा किया था, जिस पर ये मुजाहरे हुए। बरतानिया के एक पुलिस ऑफिसर को लंदन में एक नामालूम शख्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस वाक़े के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। हमला आवर ने अपने आप को भी गोली मारी, जिसकी पहचान एक 23 साल शख्स की हैसियत से की गई है। उसे हॉस्पिटल में शरीक किया गया है और उसकी हालत नाजुक बताई गई है। ये बात मालूम नहीं हो सका कि दूसरे शख्स को क्यों हिरासत में लिया गया। टेलीग्राफ अखबार ने बताया कि हमला आवर के बारे में समझा जाता है कि वो श्रीलंका का शहरी है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा कि यह हम सब के लिए अफसोस का दिन है। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि वो इस वाक़े से हिल कर रह गए हैं। अमेरिका ने क्यूबा पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन पाबंदियों के जरिए अमेरिकी शहरी क्यूबा की हुकूमत की मिल्कियत वाली इमारतों में नहीं रह सकेंगे और क्यूबा के सिगार और शराब को इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। फौजियों की एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने यह ऐलान किया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि अमेरिका ने क्यूबा के साथ अवाम से अवाम के राब्ते पर पाबंदी लगा दी है। क्यूबा के सदर ने ट्रंप हुकूमत को अखलाकी एतबार से करप्ट करार दिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के एक शहरी के कत्ल पर माफी मांगी है। इस ओहदेदार को कत्ल करने के बाद उनकी लाश को आग लगा दी गई थी। यह पहला मौका है जब किसी वाक़े पर किम जोंग उन ने ज़ाती तौर पर माफी मांगी है। किम ने साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन से कहा कि यह खौफनाक वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था। साउथ कोरिया के ओहदेदारों का कहना है कि उनका 47 साला ऑफिसर नॉर्थ कोरिया के पानी में तैरता हुआ चला गया था, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के फौजियों ने उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दिया और आग लगा दी। साउथ कोरिया के सदर को एक खत लिखते हुए किम जोंग उन ने कहा कि वो इस हौलनाक वाक़े पर शर्मिंदा हैं और साउथ कोरिया की हुकूमत, सदर और अवाम से माफी मांगते हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खास तौर पर कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। एग्रीकल्चर बिल्स के खिलाफ भारत बंद, कई जगह रोड रेल ट्रैफिक ठप। अकालियों ने कहा पंजाब में बिल्स लागू ना किए जाएं। नेतन्याहू ने मगरिबी किनारे में यहूदियों के लिए 5000 मकानात की तामीर का दिया हुक्म। अल्जीरिया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन में यूएई के सफीर ने कहा अमाराती मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रोल पर चेयर लीडर्स हैं। पेरिस में चार्ली हेब्डो ऑफिस के करीब चाकू से हमला, 4 जख्मी, 1 गिरफ्तार। लंदन में पुलिस ऑफिसर को हलाक कर दिया गया, हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली। किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के शहरी की हलाकत पर माफी मांगी। दुनिया वबा के इम्तिहान में नाकाम, सिक्योरिटी काउंसिल से एंटोनियो गुटेरेस का खिताब। यूरोप के कोविड केसों में बेतहाशा इजाफा। मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की कोविड से मौत, इंडिया में 86,000 से ज्यादा नए केस। बिहार असेंबली इलेक्शंस का शेड्यूल जारी, 28 अक्टूबर से 3 मरहलों में पोलिंग, 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की कोविड-19 से लड़ते हुए मौत हो गई है। वो पिछले 1 महीने से चेन्नई के एक हॉस्पिटल में शरीक थे। 74 साल सिंगर ने जुमे को दोपहर 1:04 पर अपनी आखिरी सांस ली। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने ये बात बताई, जहां कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें 5 अगस्त को शरीक किया गया था। हॉस्पिटल ओहदेदारों ने बताया कि 4 सितंबर को वो कोविड नेगेटिव पाए गए थे। एसपी बालासुब्रमण्यम 6 मरतबा नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। उन्होंने अलग अलग जबानों में 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। इंडिया में कोविड-19 के केस 59 लाख के करीब हो गए हैं। अब तक 93,000 के करीब जानें जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में तकरीबन 15 लाख कोविड टेस्ट किए गए। कोविड-19 का रिकवरी रेट अब बढ़कर 81.74% हो गया है। ये पहला मौका है जब एक दिन में 15 लाख के करीब कोविड टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 7 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,052 नए कोविड केस पाए गए। अब तक 47,56,000 से ज्यादा लोग कोविड से ठीक होने के बाद अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि 9 रियासतों में रिकवरी रेट काफी बेहतर है, जिनमें बिहार, तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। मुल्क में एक्टिव केस 9,70,000 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 1,141 लोगों की जान गई है। तेलंगाना में 2,381 नए कोविड केस पाए गए और 10 मौतें हुई। जुमला केसों की तादाद 1,86,641 हो गई। मरने वालों की तादाद 1,080 बताई गई। रियासत का रिकवरी रेट 82.67% है।
यूनाइटेड नेशंस में कोविड-19 वबा के बारे में अमेरिका, चाइना और रशिया के दरमियान तकरार हुई। इस दौरान यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी इदारे से खिताब करते हुए कहा कि इन मुल्कों की कोविड रिस्पॉन्स से मायूसी हुई है। 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये वबा आलमी ताउन का एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में हम नाकाम हो गए हैं। अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में भी ऐसे ही निपटा गया तो हमें डर है कि इससे और ज्यादा बदतर हालात पैदा होंगे। कुछ हफ्ते बाद अमेरिका में सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें कोविड-19 की वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सेनेट के रिपब्लिकन लीडर मिच मैकाइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर की सदारती इलेक्शंस में जीतने वाला 20 जनवरी को हलफ लेगा और एक पुरअमन ट्रांजिशन अमल में आएगा। उन्होंने एक ट्वीट में ये बात कही। कई दूसरे रिपब्लिकन लीडर्स भी ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं। बरतानिया और फ्रांस में कोविड-19 के केसों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि स्पेन में आने वाले महीने बहुत सख्त होंगे। यूरोपीय मुल्कों खासतौर पर बरतानिया, फ्रांस और स्पेन में हालिया दिनों में कोविड केस काफी बढ़ गए हैं और दूसरी लहर के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। बरतानिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,632 केस पाए गए। वबा शुरू होने के बाद से ये एक दिन की सबसे ज्यादा तादाद है। फ्रांस में 16,096 केस रिकॉर्ड किए गए, जो पिछले दिनों के उससे एक दिन पहले के मुकाबले में 3,000 ज्यादा हैं। पेरिस के हॉस्पिटल्स में मरीजों की भरमार है। स्पेन, खासतौर पर मैड्रिड का इलाका बहुत ज्यादा मुतासर दिखाई दे रहा है, जहां की आबादी 6.6 मिलियन है। इस इलाके में ओहदेदारों को वबा से निपटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 10,600 इन्फेक्शंस पाए गए। ओहदेदारों ने बताया कि मैड्रिड के लिए आने वाले दिन काफी खतरनाक होंगे। यूरोप की कई हुकूमतों ने कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनजर लोगों के जमा होने और उनकी नक्लो हरकत पर पाबंदियां लगाई हैं। कई लोग इन पाबंदियों से नाराज हैं और इस बारे में एक बहस शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ ने खर्च में कमी का फैसला किया है। कोविड-19 की वजह से आमदनी में कमी के मद्देनजर यह फैसला किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल शाही खानदान पर टैक्स पेयर्स का $88 मिलियन से ज्यादा खर्च होता है। यूएई में कोविड-19 के 1008 नए केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। अमारात के केसों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने कहा है कि पहले मरहले में हर ज़ायर को उम्रा अदा करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। ये मरहला 4 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। सऊदी हुकूमत ने 7 महीनों बाद मरहलावार तौर पर उम्रे बहाल करने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इलेक्शंस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ये इलेक्शंस 3 मरहलों में होंगे। पहला मरहला 28 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने बताया कि दूसरा मरहला 3 और तीसरा मरहला 7 नवंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग रियासतों में बाई इलेक्शंस की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया है। इस दौरान बिहार में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट फौरी लागू हो गया है। मुल्क के कई मकामात पर हाल ही में मंजूर ज़रई बिल्स के खिलाफ किसानों और दूसरों ने जबरदस्त एहतजाज किया। कई जगह सड़कें और रेल ट्रैफिक बंद कर दी गई। किसान तंजीमों ने हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूरा एग्रीकल्चर बिल्स के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया था। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में बंद से आम जिंदगी मुतासर हुई। किसानों ने नोएडा में दाखिल होने के मकाम पर ट्रैक्टर्स और कारों को पार्क करते हुए रास्ता बंद कर दिया, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक ठप हो गई। भारतीय किसान यूनियन के अरकान ने यह एहतजाज किया। पंजाब में अकाली लीडर सुखबीर सिंह और हरसिमरत कौर ने मुजाहरे की क़यादत की। भारतीय किसान यूनियन और दूसरी तंजीमों ने कई जगह चक्का जाम किया। अकाली लीडर्स ने एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हुए पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह से मुदाखलत की अपील की और उनसे कहा कि वो फौरी एक कैबिनेट मीटिंग बुलाते हुए एक ऑर्डिनेंस मंजूर करें और ऐलान करें कि रियासत में इन एग्रीकल्चर बिल्स को लागू नहीं किया जाएगा। हरियाणा में दिन के 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद बनाया गया, लेकिन हाईवेज को बंद से अलग रखा गया। किसानों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे बंद कर दी। बेंगलोर, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार से भी बंद मनाने की खबरें मिली हैं।
تمل ناڈو کے کسانوں نے انسانی کھوپڑیوں کے ساتھ ایگریکلچر بلز کے خلاف احتجاج کیا۔ کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں منظورہ بلز کسانوں کے خلاف ہیں۔ دہلی میرٹھ ہائی وے، کرناٹک تمل ناڈو ہائی وے کو بھی بند کر دیا گیا۔ مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان بلز سے چھوٹے کسانوں کو فائدہ ہوگا اور وہ اپنی پیداوار کسی کو بھی بیچ سکیں گے۔ کرکٹر وراٹ کوہلی اور ان کی بیوی انوشکا شرما کے بارے میں سابق کرکٹر سنیل گواسکر کے ایک ریمارک پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس ریمارک کے لیے سنیل گواسکر پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ سنیل گواسکر نے رائل چیلنجرز بنگلور اور کنگز 11 پنجاب کے درمیان میچ کے وقت یہ تبصرہ کیا تھا جب کپتان وراٹ کوہلی 2 کیچز ڈراپ کرنے کے بعد کم سکور پر آؤٹ ہو گئے۔ گواسکر نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران وراٹ کوہلی نے کرکٹ کی پریکٹس نہیں کی بلکہ وہ انوشکا کی گیندوں پر کھیلتے رہے۔ ان کے اس تبصرے سے بدمزگی پیدا ہو گئی ہے۔ خود انوشکا شرما نے اس ریمارک پر تنقید کی۔ سنیل گواسکر ایک وائرل ویڈیو کا حوالہ دے رہے تھے جس میں وراٹ کوہلی اور انوشکا شرما لاک ڈاؤن کے دوران اپنی چھت پر کھیل رہے تھے، لیکن اس تبصرے کا ڈبل میننگ لیا گیا۔ کوہلی کے فینس نے ان کی بیوی اور ایکٹریس انوشکا شرما کو اس معاملے میں گھسیٹنے پر کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انوشکا نے انسٹاگرام پر کہا کہ مسٹر گواسکر، آپ کے ریمارک سے بدمزگی پیدا ہوئی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کرکٹر کی بیوی کے بارے میں یہ بیان کیوں دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے برسوں میں کامنٹری کرتے ہوئے ہر کرکٹر کی نجی زندگی کی عزت کی ہوگی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایگریکلچر بلز کے خلاف بھارت بند، کئی جگہ روڈ ریل ٹریفک ٹھپ۔ اکالیوں نے کہا پنجاب میں بلز لاگو نہ کیے جائیں۔ نتن یاہو نے مغربی کنارے میں یہودیوں کے لیے 5000 مکانات کی تعمیر کا دیا حکم۔ الجیریا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن میں یو اے ای کے سفیر نے کہا اماراتی مڈل ایسٹ میں امریکہ کے رول پر چیئر لیڈرز ہیں۔ پیرس میں چارلی ہیبڈو آفس کے قریب چاقو سے حملہ، 4 زخمی، 1 گرفتار۔ لندن میں پولیس آفیسر کو ہلاک کر دیا گیا، حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی۔ کم جونگ ان نے ساؤتھ کوریا کے شہری کی ہلاکت پر معافی مانگی۔ دنیا وبا کے امتحان میں ناکام، سیکیورٹی کونسل سے اینٹونیو گوٹریس کا خطاب۔ یورپ کے کووڈ کیسوں میں بے تحاشا اضافہ۔ مشہور سنگر ایس پی بالا سبرمنیم کی کووڈ سے موت، انڈیا میں 86,000 سے زیادہ نئے کیس۔ بہار اسمبلی الیکشنز کا شیڈیول جاری، 28 اکتوبر سے 3 مرحلوں میں پولنگ، 10 نومبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔